صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ مائک پہ دھیان دیجیے گا سسٹر آپ لوگ، مائک پہ دھیان دیجیے گا، ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، ابھی آپ لوگ مائک آف رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما یعنی پھر، لما جب ایک ایک حرف کا اپنا معنی ہوتا ہے نا، تو معنی کو سمجھنا ضروری ہے، اسے یاد بھی کر لینا ہے نا، اور بار بار وہ الفاظ جب ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب فصلہ باہر نکلے، تالوت بالجنود لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے طالوت علیہ السلام جنگ کے لیے۔ قولا کہا، طالوت علیہ السلام نے قولا کہا، سنگل ہے پاسٹ ٹینس ہے یہ، انا بے شک اللہ مبتلی آزمانے والا ہے تم کو، بالام واو اس کا روٹ ہے، اور یہ ابتلا کہتے ہیں نا آزمائش میں ڈالنا، تو اللہ تمہیں کیا کرنے والا ہے؟ آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ کس سے آزمائش ہوگی؟ بنہرن، ایک نہر سے، یعنی دو زیر جو ہے نا وہ ایک کے لیے یہاں پہ اٹھائیں گے، ایک نہر سے۔ فمن پھر جو، شریبا پی لے، شین رابا اس کا روٹ ہے شریبا، وہ پی لے اس میں سے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے شریبا، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا الا، تو یہ جو بیچ کا کلمہ ہے نا اس میں کبھی زبر زیر پیش آ سکتا ہے، تو جو پی لے اس میں سے، فلیسا پھر نہیں، منی مجھ سے، من پلس یا ہے، من یعنی سے اور یا یعنی میں، مجھ سے یعنی میرا ساتھی وہ نہیں ہوگا۔ ومن اور جو، لم یطعم نہیں وہ چکھے اس کو، لم یعنی نہیں، یطعم وہ چکھے اس کو، فإنہ کس کو؟ وہ نہر کے پانی کو، فإنہ پھر بے شک وہ، منی میرا ساتھی، جو نہیں چکھے گا نا وہ میرا ساتھی ہوگا، مجھ سے ہوگا۔ الا سوائے، ایک چھوٹ دی گئی کہ ایک چلو بھر پی سکے تو پی لے، سوری فون آ گیا تھا۔ مگر جو طرفہ من کو طرفہ ہے نا، چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، جو ایک چلو پانی بھر لے، بھی یدی ہی، یدی یعنی ہاتھ، اپنے ہاتھ سے، فشربوا پھر انہوں نے پی لیا اس سے، الا سوائے، اب دیکھو شریبو پلورل ہے، وہ پاسٹ ٹینس کا پلورل ہے، سوائے قلیلاً تھوڑے ان میں سے بچے رہے جنہوں نے پانی کو نہیں پیا۔ فلما جب، جاوزہ وہ پار ہوا اس کے، جاوزہ جیم و زا اس کا روٹ ہے، وہ پار ہوئے، پھر جب جاوزہ وہ پار ہوئے، کون؟ طالوت علیہ السلام، اس کے یعنی نہر کے، ہوا وہ اور والذین وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے اور طالوت علیہ السلام نہر کے پار گئے۔ قالوا انہوں نے کہا،
उन्होंने कहा ला ताकत, नहीं ताकत, नहीं ताकत हमारे लिए आज के दिन, भी जालूता, जालूत के साथ। तो ये बी को बाद में उठाएंगे, जालूत और उसके लश्कर के साथ। यानी आज हमें ताकत नहीं है कि हम जालूत और उसके लश्कर के साथ लड़ सके। कौला कहा, कौला लजीना कहा वो लोग, कौला यानी कहा, लजीना वो लोग जो, यजुन्नूना, जन्ना यानी गुमान करना, यकीन रखते थे, अन्नहुम के वो, अन्ना यानी के, हम यानी वो, मुलाकुल मिलने वाले हैं अल्लाह से। मुलाकुल्लाह ही है, अल्लाह से मिलने वाली, इस तरीके से ये मुदाफ मुदाफ से है। कम यानी बारहा, कितनी बार, है ना? छोटी जमातों में से, फिअतिन कलीलतिन जो है वो मौसूफ सिफत है, कलीलतिन इसकी सिफत है जमात की। छोटी जमातों में से अलबत वो गालिब आई। ये भी पास्ट टेंस का मानना चाहिए। सॉरी, गालिब आती है बड़ी जमातों पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। यहाँ पे देखिएगा जब टूट कैसे करते हैं। फलम्मा, फिर जब निकले तालून लश्कर के साथ, कौला कहा, इन्ना बेशक अल्लाह आजमाने वाला है तुमको एक नहर से, पवन शरीबा, फिर जो पी ले उसमें से, फलई सा, फिर नहीं मुझसे यानी मेरा साथी, वमल्लम और जो नहीं, यत अम हो वो चखे उसको, फ इन न, फिर बेशक वो मुझसे यानी मेरा साथी, इल्ला मगर, मन तरफा, जो चुल्लू भर ले, चुल्लू अपने हाथ में, फशरीबू, फिर उन्होंने पी लिया, हाँ, उसमें से सिवाय थोड़े, हाँ, उन्होंने पी लिया उसमें से यानी नहर में से पी लिया, सिवाय थोड़े उनमें से जो थे, वो नहर का पानी नहीं पिए, थोड़े ही बचे थे। फलम्मा, फिर जब पार किया तालूत अलैहिस्सलाम ने, पार किया उसको, ये हो गया नहर के लिए, उन्होंने और वो लोग जो ईमान लाए थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा नहीं ताकत हमारे लिए आज के दिन, जालूत और उसके, जालूत और उसके लश्कर के साथ, भी को ऐसे उठाएंगे, जालूत और उसके लश्कर के साथ आज हम मुकाबला नहीं कर सकते। और लजीना कहा वो लोग, वो गुमान करते थे कि वो मुलाकुल्लाह ही, अल्लाह से मुलाकात करने वाले, कितनी ही कलील जमात, वो गालिब आई, कसीर जमात का कितनी थोड़ा ग्रुप है ना तादाद में, बड़े ग्रुप पर गालिब आया है। और कैसे आया, अल्लाह के हुक्म से आया है। और अल्लाह किसके साथ है, सफर करने वालों के साथ है। जो मैदान जंग में साबित कदम रहते हैं ना, अल्लाह उनका साथ देता है। इसे थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये तालूत ये जो मुकाबला हुआ है ना, जो तालूत सलाम ने जालूत से किया है मुकाबला, वो ऐसा ही है जैसे कि जंगे बदर में मुसलमानों ने काफिरों के साथ मुकाबला किया था। ये बिल्कुल जंगे बदर की तस्वीर है। और ये किबला चेंज होने के पहले कमोबेश 2 महीने के बाद पेश आया था जंगे बदर। क्योंकि जंगे बदर का मामला भी पेश आने वाला था ना, तो अल्लाह ताला ने पहले से इन आयतों के जरिए से मुसलमानों को एक लेसन दिया, है ना।
तो जब ये आयतें नाजिल हुई तो अहले ईमान ये सिर्फ चीज जान गए ना कि जंग में क्या है, साबित कदमी जरूरी है। फौज की इताअत का इम्तिहान लिया तालूत अलैहिस्सलाम ने। हाँ, दुश्मन के आमने सामने होने से पहले तालूत अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के डिसिप्लिन और इनकी इताअत और वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए ऐलान किया कि सामने जो फला नदी हमारी राह में आ रही है, इसके जरिए से अल्लाह तुम्हारी जांच करेगा। तुम में से जो इसका पानी पी लेगा वो मेरा साथी ना बन सकेगा, और जो इसको बिल्कुल नहीं पिएगा वो मेरा साथी होगा। अगर किसी ने हाथ से एक आध चुल्लू पी लिया तो वो काबिले दरगुजर है। इस इम्तिहान में फौज की अक्सरियत फेल हो गई। लोगों ने खूब सैर होकर पिया, सिर्फ थोड़े से लोग इस इम्तिहान में पूरे उतर सके। बनी इसराइल ने जब इंतखाब किया ना लोगों को डिसिप्लिन के मामले में, ये लोग ऐसे ही हमेशा से रहे हैं। यानी डिसिप्लिन के मामले में ये हमेशा से ऐसे फेल हो जाया करते हैं। और ये जो इम्तिहान हुआ था समूही नबी की ताकीद पर हुआ था, इस वजह से तालूत ने इसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब फरमाया है। अब जिस नदी के जरिए से इम्तिहान हुआ इसका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है, मकसद बयान करना है कि इम्तिहान का जिक्र है ना। कौन सी नदी है क्या कौन सी नहीं है। हाँ, ये शायद ये दरिया है उर्दन हो, हाँ, या कोई इसी वादी के दरमियान का कोई चश्मा नाला हो। इस इम्तिहान में 100% कामयाबी के लिए तो शर्त ये थी ना कि इसका पानी सिरे से कोई चखता ही नहीं, सिर्फ एक आध चुल्लू पी लेने से दरगुजर फरमाया था। तो जो सच्चे और कामिल ईमान वाले लोग थे ना इस इम्तिहान में पूरे उतरे। यहाँ वो लोग जो ईमान लाए ना अपने कामिल मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी वो लोग जो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। इससे ये बात आपसे आप निकली कि जो लोग इस इम्तिहान में नाकामयाब साबित हुए वो अपने दावे ईमान में भी मुनाफिक थे। क़ालू ला तौक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही, जाहिर है कि ये इन लोगों का कौल है जिन्होंने खूब पानी पी के ढह गए। करीने से मालूम होता है कि उन्होंने नदी को पार करने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि इसी पार से खड़े खड़े उन्होंने आगे बढ़ने वाले साथियों को सुना दिया कि अब हमने जालूत और इसके फौजों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। यहाँ जालूत के नाम लेने से इस बात का इजहार हो रहा है कि इसकी हैबत इनके दिलों में बहुत थी। फतेह का दारो मदार कसरत और किल्लत पर नहीं है, बल्कि हिम्मत और ईमान पर है। और ये हकीकी जो हिम्मत है ना वो अल्लाह की राह में मौत को जिंदगी से ज्यादा अजीज और महबूब बना देती है। वो मोमिन के इस अकीदे से पैदा होती है कि अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मरते नहीं हैं, बल्कि हकीकी जिंदगी और अपने रब की मुलाकात से शर्फियाब होते हैं। इन लोगों ने अपनी हिम्मत छोड़ बैठने वाले साथियों को उभारा, कि भले फलस्तीनियों की तादाद ज्यादा है मगर हिम्मत मत हारो। असल चीज तादाद नहीं है, बल्कि अल्लाह की मदद है, अल्लाह का सपोर्ट है। तारीख इसी मिसालों से भरी पड़ी है कि बहुत थोड़ी तादाद वाला गुरोह महज अल्लाह के हुक्म उसकी मदद से बड़ी फौजों पर गालिब आया है। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए जो चीज मतलूब है वो सब्र और इस्तिकामत है और हिम्मत है, ना कि तादाद की कसरत और कमी है। और तौरात में भी इस वाक़े का जिक्र है, मगर वो कुरान जिस तरीके से पेश कर रहा है ना वो सही तरीके से बामकसद तरीके से बयान किया जा रहा है। कुरान का बयान सही और बामकसद है। और ये चीज जो है इससे हमें बहुत सबक सीखना है कि जो मैदानी जंग में काम आने वाली चीज क्या है, ईमान और हौसला। अगली आयत ले लेते हैं। वलम्मा बरजू, और जब, वाव यानी और, लम्मा जब,
लम्मा भी क्या है, ज़र्फ़े ज़मा है। जब बरजू, आमने सामने हुए। बाराजा इसका रूट है, वो आमने सामने हुए। जालूत और उसके लश्कर के। कौन आमने सामने हुए? तालूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी जालूत और उसके लश्कर के सामने हुए। कौलू, उन्होंने कहा। जब वो तालूत अलैहिस्सलाम के साथ जो ईमान वाले साथी थे ना, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, है ना। अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए, है ना। ये ना हो कि इंसान जो है वो अपने तदबीरों पे ज्यादा भरोसा करे, हाँ, और अल्लाह ताला पे तवक्कुल ना करे। दोनों को बैलेंस करना चाहिए, है। तवक्कुल करना मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं। तवक्कुल अल्लाह पे ही करना है, लेकिन कोशिशें भी करना है, क्योंकि ये दुनिया असबाब पे बनी हुई है ना। आप सल्लम का भी यही है कि आप जंगे बदर के लिए निकले, आपने दुआएं भी की, है ना। और जो तैयारी आप करके जा सकते थे, आप तैयारी कर कर गए। तो दुनिया में ये सब चीजें हमें सिखाती है कि तवक्कुल के नाम पर क्या करना है, बैठ नहीं जाना है, कोशिशें भी करना है। तो उन्होंने दुआएं की। उन्होंने कहा रब्बना, ए हमारे रब। हाँ, यहाँ पे या जो है ना वो हज़फ है। अफरिग, ये दुआ है। डाल दे, अलैना, हम पर। अफरिक जो है ना वो ऑर्डर है। डाल दे, उड़ेल दे, हम पर क्या उड़ेल दे, सबर। सबर का मतलब है हक के सामने डट जाना। वह सब्बित, और जमा दे, ये भी ऑर्डर है। साबाता इसका रूट है। और जमा दे अकदामना, हमारे कदमों को। वंसुरना, और मदद कर हमारी। वंसुर भी ऑर्डर है, हाँ। तो देखिए, अफरीक, वसब्बित, वंसुर, ये सब ऑर्डर है। और मदद कर हमारी काफिर कौम पर। यानी मैदान जंग में भी एक जिहादी अल्लाह को नहीं भूलता है ना। आप सल्लम से किसी ने पूछा कि रमजान किसका अच्छा है, तो आप सल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह को ज्यादा याद किया। फरमाया जिहाद किसका अच्छा है, तो फरमाया जिसने अल्लाह को ज्यादा याद किया। मैदान जंग में भी अल्लाह को ही याद करते हैं अहले ईमान। और क्या याद, क्या कहते हैं कि अल्लाह हम हमारे कदम को जमा दे, हम पे सबर को उंडेल दे। ऐसा ना हो कि दुश्मनों की कुव्वत देखकर हमारे कदम डगमगा जाए। यहाँ पे देखिए। और जब जालूत और इसकी फौजों से इनका सामना हुआ, तो उन्होंने दुआ की, है हमारे परवरदिगार, हम पर सबर उंडेल दे, हमारे कदम जमाए रख, और काफिर कौम पर हमें गलबा अता फरमा। वर्ड ले लेते हैं। और हजमुहुम, हजब का मतलब होता है हरा देना, हाँ? यानी फिर, हजमा हजमा हजम, उन्होंने हरा दिया। किसने हरा दिया? तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर ने। उनको, उनको, जालूत की फौज को। बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म से। एक एक वर्ड का अपना एक एक मीनिंग है। वक़तल दाऊद जालूता, वह यानी और, कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसका? जालूत का। वह और आताहू, आता यानी दिया उसको, किसने? अल्लाह ने। मुल्का, मुल्क, बादशाहत, मुल्क। वल हिकमता, और हिकमत। व अल्लमहू, हाँ, तफसीर में एक एक वर्ड का खुलासा होता है इंशाल्लाह। और अल्लमा यानी सिखाना। और अल्लाह ने सिखाया उनको। मिम, मिम यशाऊ, उसमें से जो, मिन प्लस माँ है, उसमें से जो, यशाऊ उसने चाहा, अल्लाह ने जो चाहा उस इल्म से उनको नवाज दिया, सिखा दिया। वलो, जंग का जो मकसद है वो यहाँ बयान हो रहा है। वलो, वा यानी और, लो अगर, ला नहीं, और अगर नहीं, दफ़उल्लाही, दफ़उल्लाही, दफ़उ यानी हटाता, हटाना, हाँ? अल्लाह हटाता, दफ़उ यानी हटाता अल्लाह लोगों को, बादुहुम बिबादिन,
तो ऐसा उठाएंगे, उनको एक दूसरे के जरिए, उनके बास को बास के जरिए, यानी उनको एक दूसरे के जरिए अगर अल्लाह नहीं हटाता जालिमों को, है ना, अगर ईमान वालों के हाथों से उनको, उनके साथ जिहाद नहीं करते और नहीं हटाता, तो क्या हो जाता? ला फसदती, ला यानी यकीनन, फसदत जो है ना, ता जमीन के लिए गया, तबाह हो जाती जमीन। वलाकिन और लेकिन, वाव यानी और, लाकिन यानी लेकिन, जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं, अल्लाह, लेकिन अल्लाह रू फजलिन, फजल करने वाला, हाँ, पीछे से आगे जाएंगे, तमाम आलमीन पर अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ने जालिमों का जोर एक हद तक ही कायम रखा और फिर अहले ईमान के हाथों खत्म कर दिया। तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उनको शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने इनको बादशाह और हिकमत बख्शी और इस इल्म से इनको सिखाया जिसमें से वो चाहता है। और अगर अल्लाह एक को दूसरे के जरिए से दफा ना करता रहता तो जमीन फसाद से भर जाती, लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। ये अल्लाह का फजल है, उसका करम है, हाँ? ये जालिमों को एक हद तक ही अल्लाह ने मोहलत दी है। अब देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आगाज हो रहा है, हाँ, और अल्लाह ताला ने इनको मनसब नबूवत से भी नवाजा, और इनके बेटे हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनकी शुरुआत है ना बहुत गरीबी की थी, लेकिन ये नहायत शानदार हुई। उन्होंने खुद अपने बारे में फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने, कि खुदावंद ने मुझे भेड़ साले से निकाला और इसराइल के तख्त पर ला बिठाया। अब ये है कि रिवायत ये है कि दो रिवायतें मिलती हैं इनके बारे में। एक रिवायत ये है कि ये बिल्कुल उस वक्त अपनी बकरियां चरागाह में छोड़कर अपने बड़े भाई को, जो जंग में शरीक थे, अपने बाप के हुक्म से कुछ खाने की चीज देने आए थे। यहाँ उन्होंने देखा कि जालूत मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहा है, लेकिन कोई इसके मुकाबले के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखकर इनकी गैरत को जोश आया। उन्होंने तालूत से के मुकाबले की इजाजत मांगी। इस वक्त ये एक नौजवान थे। तालूत को इनकी कम उम्री में इजाजत देने पर थोड़ा तरद्दुद हुआ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बकरियों पर हमला करने वाले शेरों और रीछों के जबड़े तोड़ दिया करता हूँ, तो भला इसकी क्या हैसियत है जालिद की। तालूत अलैहिस्सलाम ने इनके हिम्मत को देखकर इनको इजाजत दे दी और खुद अपना जंगी लिबास पहनाकर अपना मखसूस असला से इनको लैस किया। इस वक्त तक इनका जमाना भेड़ों बकरियों की चरवाही में गुजरा था। इस जंगी लिबास और इन जंगी असला का इन पर इनको कोई तजुर्बा नहीं था। वो इनको पहन कर है ना थोड़ा बंधा हुआ महसूस करने लगे। आखिर में तालूत अलैहिस्सलाम की इजाजत से उन्होंने क्या किया, वो उतार दिया सब, और चरवाहों की तरह अपनी एक फलाखन उठाई और चादर के कोने में कुछ पत्थर रखे और वक्त के सबसे बड़े देव के मुकाबले में जाकर डट गए। पहले तो जालूत ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने उनको जवाब दिया ना आमने सामने, इतने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलाखन में पत्थर रखकर जो मारा ना, तो वो पत्थर उनके उसके सर पे जाकर चिपक के रह गया जालूत के, और वही ढेर हो गया। और फिर क्या हुआ, फलस्तीनियों में एक भगदड़ मच गई और तालूत अलैहिस्सलाम उनका लश्कर जीत गया। तो असल ताल्लुक बताना ये था कि किल्लत और कसरत, वसाइल और तदाबीर से जंग की फतह और शिकस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह से है। इस वजह से असल एतमाद अल्लाह पर होना चाहिए, ना कि असबाब और वसाइल पर। इससे ये मकसद नहीं है कि असबाब और वसाइल के इख्तियार करने की नफी है, बल्कि ये इख्तियार करना चाहिए, है ना। देखिए कि कुरान मजीद में आता है ना
کہ وما رمیتا اذا رمیتا وما کلن ولا کن اللہ رما، یعنی آپ سے وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھی، ہے نا، وہ اس میں تاثیر اللہ نے پیدا کی تھی۔ جنگ بدر میں بھی ایسی ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے ایمان والے کی۔ یہ ان انعامات کا ذکر ہے جو اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے۔ اس کے بعد وہ طالوت علیہ السلام کے داماد بھی ہوئے، پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی ہوئے۔ اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا۔ اصل میں یہی حکمت ہے نا، جب اس کا جوڑ بادشاہی کے ساتھ ملتا ہے نا، تو بادشاہ زمین میں اللہ کی خلافت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہونا تو بادشاہی چنگیزی ہو جاتی ہے، ظالم بادشاہ بن جاتا ہے انسان۔ بادشاہی اور درویشی کا یہ ملاپ ہے نا، جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ایک درویش بادشاہ تھے، اس لیے کہ ان کی بادشاہی کا تخت و تاج سونے چاندی سے نہیں تھا، بلکہ حکمت کے لال و گوہر سے آراستہ تھا۔ یہاں پہ جہاد کی ضرورت بھی بتائی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نہ دیتا اور اس کے صالح بندے زمین کو فتنے فساد سے پاک کرنے کے لیے تلوار نہ اٹھاتے، تو یہ شریر اور فسادی لوگ زمین کو فساد سے بھر دیتے اور اللہ کی زمین نیکی اور تقوی کے تمام آثار سے خالی ہو جاتی۔ اسی کا ذکر سورہ حج میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صالحین کا جہاد اہل زمین کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے، ورنہ ظالم ظلم ہی کرتے رہ جاتا اور اہل ایمان اس دنیا میں مظلومیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا جو ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر سکتے۔ ٹھیک؟ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ